المنتقم یعنی کہ دی ایونجر، حالانکہ جو ہے وہ اس کا مطلب ایونجر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بدلہ لینے والا یا انتقام لینے والا۔ اب خدا جو ہے وہ انتقام لینے والا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا نے تو اپنے فالوورز کو بھی منع کیا کہ انتقام نہیں لینا، بدلہ دینا خدا کا کام ہے، بدلہ لیتا نہیں ہے وہ۔ سو ہر ایک کا کام کا لکھا ہے کہ اس کے کام کے مطابق بدلہ اس کے ہاتھ میں، بدلہ دیتا ہے وہ، which means انتقام لینے والے میں اور بدلہ دینے والے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بدلہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ جو کہ رزاق یا خالق اور مالک ہے۔ جب میں کسی چیز کو کچھ کرتا ہوں تو میرے کام کا وہ بدلہ دیتا ہے، which means کہ he gives me exactly the same measure which I deserve۔ لیکن انتقام کون لیتا ہے؟ کہ جو دل میں برائی رکھے اور کسی کے خلاف جو ہے وہ غصہ رکھے اور اس کو جو ہے وہ موقع آنے پر جو ہے وہ ڈسٹروائے کرے یا اس سے جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیل کرے کہ وہ لگے کہ اس نے انتقام لیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو ایکسٹرا آرڈنریلی جو ہے وہ ری پے کیا ہے۔ یہ انجسٹ معبود کی یا انجسٹ شخص کی جو ہے وہ پکچر ہے جو انتقام لیتا ہے، لیکن خدا انتقام نہیں لیتا، خدا بدلہ دیتا ہے جو کہ جسٹ خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے بدبخت یعنی کہ باسٹرڈ ڈی جی کی گفتگو سن لی۔ اب اس نے جو المنتقم کا اور انتقام کی جو ٹرانسلیٹ کی ہے، جو المنتقم کی ٹرانسلیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور جو اس نے انتقام لینے کی جو ٹرانسلیٹ کی ہے یا جو اس نے ڈیفینیشن کی ہے، جو اس نے اس کی ماں نے اسے سکھائی ہوگی، اس کی ماں نے اسے سکھائی ہوگی، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جب آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر آپ کو پوری طرح میرے اس بیان کی سمجھ آئے گی۔ اس کے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اس نے ڈیفینیشن کی ہے انتقام لینے والی، انتقام لینا، یہ اللہ رب العزت پر جو ہے وہ اس کا اجرا ہوتا ہے یا یہوہ بائبل کا خدا یا جو بھی اس کو کہہ لیں۔ میں پچھلے بیانات میں اس کو ثابت کرتا رہا ہوں کہ وہ شیطان، ریل شیطان، حقیقی شیطان، ابلیس ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لیں گے ہم المنتقم، عربی کا لفظ ہے، اس کا ٹرانسلیٹ لیں گے کیا ہے۔ اس کا ٹرانسلیٹ میں نے گوگل سے لیا ہے، جو آپ کے سامنے اس کا میں نے کیا، اپنا اسکین چل رہا ہے۔ یہ ہے المنتقم، اس کا میننگ ہے بدلہ لینے والا۔ کیا ہے اس کا میننگ؟ بدلہ لینے والا۔ اصل میں کسی کتاب میں سے بھی لے کے اپنا کر سکتا تھا، مگر یہ کہ میرا اسکین جو ہے وہ لاہور میں پڑا ہوا ہے اور میں اس وقت کراچی میں ہوں، تو پھر یہ ہے کہ میں نے روزانہ 5-6 بیان کرنے ہوتے ہیں، روزہ بھی ہے، پھر بازار کی بھی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس لیے مارکیٹ سے میں اسکین کروا نہیں پا رہا، اور اس لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ایسی چیز ہو تو وہ گوگل سے ہی اٹھا کے ٹائپ کر دوں۔ ویسے بھی عیسائی لوگوں کا وہ گوگل پر زیادہ اعتماد ہے دوسری کتابوں کی نسبت۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ انتقام ہے، قرآن پاک میں المنتقم یعنی کہ اللہ رب العزت کی صرف المنتقم کا ذکر نہیں ہے، لفظ انتقام کا ذکر ہے، اور اس کا میننگ ہے بدلہ۔ بدلہ جو میں نے ابھی ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کی ہے، بدلہ لینے والا یا بدلہ دینے والا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے آپ نے پڑھ بھی لی، تو اس کو ہم بدلہ لینے والا یا بدلہ دینے والا۔ ہم دیکھتے ہیں اب قرآن پاک میں 4 آیات ملتی ہیں جس میں انتقام کا لفظ پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے سورہ عمران یعنی کہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور آیت ہے 4، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے، سورہ ابراہیم یعنی کہ 14ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے 47۔ تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ پھر آپ دیکھیں گے سورہ زمر یعنی کہ 39 سورہ مبارکہ اور آیت ہے اس کی 37، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں، اور بدلہ جو ہے وہ کوئی اتنا یعنی کہ سختی کا کام نہیں ہے۔ اب جو اس نے ڈیفینیشن کی ہے کس کے؟ انتقام کی،
इंतकाम की और बदले की इसने डेफिनेशन कर दी है। इसी की डेफिनेशन पर हम चलेंगे, जो इसकी मां ने इसको डेफिनेशन सिखाई है। किसकी मां ने? ये टीजी खान बास्टर्ड की मां ने, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट हो गई थी, हामला हो गई थी उसे किसी पठान से, हमारे खान साहब, किसी खान साहब से, उसकी ये पैदावार है, तो उसी के नाम पे इसने अपना नाम खान रख लिया। बाकी इसकी जुबान जो है वो पंजाबी है, पंजाबी, इसका लहजा जो है बताता है कि पंजाबी है। वरना जो खान है, पठान है, गुल खान टाइप के लोग हैं, यानी कि गुल खान है जो, वो आपने अगर गुल खान से मिले हुए हों तो आपको पता होगा कि वो अगर 2-3 नस्लें भी पंजाबियों में रह जाएं या 4 नस्लें भी रह जाए तो उनका लहजा नहीं बदलता, आवाज का अंदाज नहीं बदलता। तो ये ठहरा पंजाबी। अब ये था पंजाबी, यानी कि इसकी माँ पंजाबन चूड़ी थी, वो किसी पठान के हथे चढ़ गई, वो कोई सौदा बेचने आया होगा या कोई किसे कैसे भी है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, बाकी इसकी माँ के मैं तो ख्वाब देखता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी तो हम उम्र होगी ना, मेरी तो हम उम्र है, इसलिए मैं तो थोड़ा बहुत जो ध्यान दे सकता हूं। अब जो इसकी मां ने इसको डेफिनेशन बताई है इंतकाम की, उसको हम देखेंगे बाइबल में। बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में जो यहोवा है, यानी कि इसने वो इसको क्लियर कर दिया कि जो इंतकाम लेता है वो कौन है? इब्लीस। तो क्या जो यहोवा है वो क्या लेता है? बदला लेता है या इंतकाम लेता है? क्या करता है वो? उसको हम देखेंगे इस्तिस्ना बाब 32 में और इसकी आयत 35। उस वक्त जब उनके पांव फिसलें तो इंतकाम लेना और बदला देना मेरा काम होगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है। यहोवा। कौन सा यहोवा? जो इब्लीस है, बाइबल का खुदा है, क्योंकि उनकी आफत का दिन नजदीक है और जो हादसे उन पर गुजरने वाले हैं वो जल्द आएंगे। और फिर आप इसको देखेंगे सैमुअल 2 बाब 18। मैंने कुरान पाक की भी 3 आयात को ही आपके सामने रखा और ये मैं गलाजत की भी 3 आयात को ही रखूंगा। वहां पर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला लेगा, यानी कि जो उन्होंने जितना काम किया उसका उनको उनके मुताबिक अजर दे देगा। मगर जो बाइबल का यहोवा है, बाइबल का जो यहोवा है इब्लीस, उसके काम देखें। अब सैमुअल 2 में चलते हैं, सैमुअल 2 बाब 18 और इसकी आयत है 19। तब सदूक के बेटे अखीमाज ने कहा कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। फिर आप इसी को देखेंगे इब्रानियों बाब 10 और इसकी आयत 30, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। यानी कि ये 3 जगहों पे क्या हो गया? इंतकाम। अब जो इंतकाम की डेफिनेशन टीजी बास्टर्ड ने की है, जो उसकी मां ने उसको बताई होगी यकीनन, वो आप उसके ज़हन में रखते हुए ये बाइबल के यहोवा इब्लीस पर इसको जो है इजरा करें, इस पर अटैक करें। तब फिर देखेंगे खरूज बाब 17 और आयत है इसकी 13। और यशू ने अमालिक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशू को सुना दे, या यशुआ को सुना दे कि अमालिक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालिकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। और देखा जाए तो फिर आप देखेंगे साउल के दौर में साउल को जब बादशाह बनाया गया तो खुदा बाइबल के यहोवा इब्लीस ने उसको हुक्म दिया कि जाओ जाके अमालिकियों को तबाह नेस्तो नाबूद कर दो। मुझे याद है कि वो जब बनी इसराइल मिस्र से निकले थे तो उन्होंने उनका रास्ता बनी इसराइल का रोका था। हालांकि उस वक्त यशवा ने उनको शिकस्त भी दे दी थी, तलवार की धार से कत्ल भी कर दिया था। मगर यहोवा जो वाकई ही इब्लीस है, 400 साल से वो दिल में रख के बैठा था, उनके लिए बुराई दिल में रख के बैठा था। क्या रख के बैठा था? बुराई दिल में रख के बैठा था। जैसे ही साउल बादशाह बना, उसको हुक्म दिया गया, वो आप इसका वो स्कैन देख रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, बहुत लंबा चौड़ा है, तो वो उसको हुक्म दिया गया, तू जाके उनको खत्म कर, मुझे याद है, तो ये है वो है। वो गया, उसने जाके उनके, और हुक्म भी क्या दिया कि उनके हर जी रूह को कत्ल कर दे, जानवर को भी नहीं छोड़ना, इंसान को तो किसी को भी नहीं छोड़ना, चाहे वो शीरखार का 1 दिन का बच्चा है, चाहे वो 200 साल का बूढ़ा है। और जानवर के भी हर बच्चे बुच्चे को मार देना है, पौधे हर चीज, यानी कि वहां तहस नहस लगा दी है, फना कर देना है सबको। और साउल ने उसकी नाफरमानी की, क्या से कि उसने अजाज बादशाह था उसको जिंदा पकड़ लिया
اور बनी इसराइल ने और उन्होंने क्या जो मोटे ताजे ब्याल बकरियां वगैरह थे, जानवर थे, उनको उन्होंने जिंदा रहने दिया। उससे बाइबल का खुदा यानी यहोवा इब्लीस, उससे इसको इतनी गैरत आई उसने साउल को ही बादशाहत से रद्द कर दिया। अब मजीद हम देखते हैं एक और हवाला, एक और जो यानी कि बाइबल का एक और पर्दा फाड़ते हैं। इसको हम देखेंगे यशु बाब 10 यानी कि यशवा बाब 10 में, जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैठे हरून के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अज़ीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो जुआ दिलों से, जो अदलों से, बादलों से, भैया ये लफ्ज इन्होंने गलत लिखा हुआ है, जो भी है, जो अदलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय किया कहीं ज्यादा थे। यानी कि ये पत्थरों से गालबन दलों इन्होंने लिख दिया, तो पत्थरों, क्योंकि पत्थर आसमान से बरस रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो पत्थरों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशुआ ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, आए सूरज तू जबाउन पर और आए चांद तू वादी अयालोन में ठहरा रहा। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपना दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्यों क्या ये आश्चर्य की किताब में नहीं लिखा? और ये आश्चर्य की किताब का वजूद बाइबल में है ही नहीं। बाइबल में, पूरी बाइबल उठा के देख लें तो अब ये तो इस बाइबल की कंडीशन है जिसमें से ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाउज बिल्ला, ये यहोवा इब्लीस का जो नाम है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर थोपना चाहते हैं। ये किताब की ये औकात है कि आश्चर्य की किताब का बाइबल में ये जिक्र है, आपके सामने मैंने पढ़ दिया, आपके सामने स्कैन भी है। मगर पूरी बाइबल में पैदाइश से लेकर या तकवीन से लेकर मुकाशफा तक आप इसको जिस तरीके से मर्जी सर्च कर लें, फाड़ के एक एक सतर, एक एक लफ्ज, एक एक जैसे भी सर्च कर लें, इसमें से आपको ये आश्चर्य की किताब का वजूद नहीं मिलेगा। तो साबित हो गया कि ये जो किताब है ये फहश किताबों का मजमुआ है। ये इसके साथ ये भी साबित हो गया, ये तो साथ में बात चल रही है तो उसको मैं साथ में चला रहा हूं, तो ये इससे भी साबित हो गया कि ये किताब ऐसी है जिसमें बहुत ही कुछ हुआ। इसलिए मैं कहता हूं इसे फहश किताबों का मजमुआ। और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों के लिए की खातिर लड़ा। ये है बाइबल का खुदा या यहोवा, क्योंकि ये ज्यादा यहोवा पर तरजीह दे रहा है, यहोवा कह रहा है, तो इसलिए मैं भी यहोवा कह रहा हूं। सभी सुन के बयानात के मुकाबले मैंने बाइबल का खुदा जिक्र किया था, और अब ये जो यहोवा, क्योंकि टीजी खान ये ज्यादा यहोवा की प्रीच कर रहा है, तो फिर हम यहोवा ही को लेंगे। तो ये है औकात किसकी? बाइबल के खुदा की, यहोवा की, कि वो इंतकाम लेता है। और इंतकाम की डेफिनेशन ये टीजी खान और बास्टर्ड ने बता दी है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो यहोवा है, वो क्या है? इब्लीस है। इब्लीस से लायन है, यानी कि इब्लीस जो लानती है, मलआउन है, जो यस्सु है। क्या है? इब्लीस जो लानती है, मलआउन है, जो यस्सु है, ये वही यहोवा है। तो कुरान पाक पर या दीन इस्लाम पर उंगली उठाने से पहले, वीडियो अपलोड करने से पहले 10 बार सोचा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तक जिंदगी रखी, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू में भी जो उर्दू में अपलोड करेगा उसकी ऐसी तैसी उर्दू में लगाऊंगा। और इंशाअल्लाह ये मैं जो अब आप देख रहे हैं कि मेरा बाज़ों का लहजा डिफरेंट हो जाता है, बाज़ों का मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुख्तलिफ, यानी कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ये इंशाअल्लाह मेरा टारगेट है कि सिर्फ माह रमजान में कम अज कम 163 वीडियो तैयार करने हैं, 163, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और कम से कम 12 मिनट 15 मिनट के होंगे। तो ये मैंने 163 वीडियो तैयार करने सिर्फ इसलिए कि माह रमजान के बाद, यानी कि ईद उल फितर के बाद, हमारी ईद के बाद, ये 2015 चल रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह मैंने इंग्लिश में बयान करने, क्योंकि इंग्लिश में गंदगी गलाजत ज्यादा है। तो बाकी जो मैं मुसलमान है, जो हमारे एक खास तबका है मुसलमानों का, वो जो बहुत ज्यादा अपने आप को आलिम और पता नहीं स्कॉलर समझते हैं, आप इनके बयान सुने। आप कहते हैं कि इब्राहिम भाई आप गलत करते हो, आप गाली देते हो। आप ये देखो कि ये जो अल्लाह को इब्लीस साबित करना चाहते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ बिल्लाह
जो हम सोच भी नहीं सकते वो अल्फाज बोलते हैं, तो क्या हम इनको जी 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 करके जवाब दें, इस अंदाज में जवाब दें? कभी होगा ऐसा? नहीं। जैसा दौर चल रहा है, इस दौर में यह है कि गाली का जवाब 10 गालियों से दोगे तो अगले का मुंह बंद होगा, अगले का मुंह बंद होगा। मैं तमाम मुसलमानों को नहीं कह रहा कि आप गाली दो, आप ना करो, मैं कर रहा हूं। मेरे इम्तियाज भाई हैं, एक दोस्त है, वो बेचारा फेसबुक पर ही लगा रहता है और यूट्यूब पर भी वो छोटे छोटे बयानात करके डाल रहा है, तो वो जिस अंदाज में कर रहा है वो कर रहा है माशाल्लाह। तो एक तो इम्तियाज भाई दूसरे हैं, ये दूसरे इम्तियाज हैं। वो तो ये उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा जी, मैंने कहा यार आप गाली ना दो। कह रहे जी आप, मैंने कहा यार मैं गाली दे रहा हूं ना, मैं यहोवा को लानती साबित कर रहा हूं, अबलीस साबित कर रहा हूं, यसू को लानती अबलीस हरामी साबित कर रहा हूं, वो मेरे टेंशन है। तुम लोग ना करो, क्योंकि वजह क्या है कि तुम लोग पुराने मुसलमान हो, तुम लोग इस चीज को समझोगे नहीं, इसलिए तुम किसी और राह में चल पड़ोगे। मैं क्योंकि बाइबल को इनसे, ये जो जितने भी पादरी हैं, सेमी सैमसून और ये टीजी वगैरह, इनसे ज्यादा बाइबल को जानता हूं, इनसे ज्यादा बाइबल को जानता हूं। और मेरे 300 से ज्यादा बयानात हो गए, आपने देख भी लिया होगा कि मेरा बाइबल का नॉलेज कितना है, बाइबल का के बारे में मेरा नॉलेज कितना, वो आपने नोट कर लिया होगा। बाकी कोई चूड़ा है वो उठ के कह दे कि जाहल हो, तो वो उसका मूड है, क्योंकि वो जाहिल है, उसको जाहिल ही नजर आऊंगा, और क्या होगा। जब जाहिर जाहिल ये स्क्रीन के सामने मेरे सामने वो देखेगा तो उसको जाहिल ही नजर आएगा ना, शीशा देखेगा। तो जो मुसलमान इस बात पे मेरी मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अक्ल हिदायत दे कि वो इस बात को समझे कि जो दौर चल रहा है, इस दौर में ऐसा ही है कि गाली का जवाब 10 गालियों से दोगे, खासकर ये सोशल मीडिया पर, तो अगले का मुंह बंद होगा। वरना क्या होगा, वरना ये कौम टलने वाली नहीं है, ये कौम क्रिश्चियन कौम टलने वाली नहीं है। और इस बात को दूसरे भी मज़हब के लोग समझ गए हैं कि हमेशा ज्यादती या बुराई जो है वो क्रिश्चियन की तरफ से होती है। जवाब जो है पहला, यानी कि मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम कादरी, जो इस अंदाज में जो यहोवा को अबलीस लानती जो है साबित कर रहा है, यसू को हर तरह के, यानी कि मैं साबित कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम क्रिश्चियंस को, तमाम मेरे सुनने वालों को, जानने वालों को दीन इस्लाम समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।